चप्पल से गाड़ी पर हुआ है गाड़ी के आसे सामने बोलते अरे ओम घनमंडलाकारं दत्तदेन चराचरं तत्सदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं भयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कल्पतरुगलितं फलं सुखं खादवसंयुतं श्रीमद् भागवतर समालय महोरसिका भुविभावुकः। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायणे नमोस्तुते। प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँकि प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद सारा विश्वर ठाकुर प्रभु जगन्नाथ एवं सकल प्राणर कर्ता होती प्रभु जगन्नाथ। आमर बड़ भाग्य आम जगन्नाथ धाम उत्कल जन्म नहीं एवं प्रभु जगन्नाथ को आम आमर परिवार गोटे मुख्य सदस्य हिसाब से गणना कर हो विवाह व्रत हो कौन पर्वपर्वाणी हो सबुथ प्रथम आम भगवान जगन्नाथ को आगे निमंत्रण कर। जगन्नाथ भगवान होते ओडिशार समृद्ध ओडिशार गुणपुर बिना आशीर्वाद ओडिशार कौन प्रकार उन्नति पारना ओडिशार उन्नति हेले सारा विश्वर उन्नति प्रभुंर दान हिसाब से आज भागवतर अनुष्ठान अनुष्ठित होगा जाती से अनुष्ठान मुख्य भागवत प्रभु दान कर जगन्नाथ दासंकर कंठे बसी प्रभु निजे हृदय बस कहले भागवतर प्रथम पद सुंदर भाव अति बड़े जगन्नाथ दास व्याख्या कर प्रथम गाइले जगन्नाथ दासंकर प्रथम है पद प्रभु जगन्नाथ विषय कौन कहले नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण लीला विधृत कलेवर देव मानवे
ଅନାଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜେ କଲେ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନୃସିଂହ ଚରଣ କାହିଁକି କହିଲେ? ନମ ହିଁ ନୃସିଂହ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରଣ ବୋଲି, ନୃସିଂହ ଚରଣ କାହିଁକି କହିଲେ? ଶୂନ୍ୟ ରୂପକ୍ଷାନ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ତା ଭିତରେ। କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଆମେ ଆବାହନ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ମାନେ କିପରି ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ সেই ভাবে চিন্তা করি যেতলে সে প্রভু পাখে ত্রাহি করছেন। প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রভু দারু রূপে দারু রূপে প্রভু প্রভু বলরাম, সুভদ্রা, জগন্নাথ, সুদর্শন এইপরি চারি মূর্তি হয়েকি ব্রহ্মা কহিলে ନାରଦ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଦାରୁରୁ ତିଆରି ବା କାଠର ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର ହେବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯଜ୍ଞର ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଲେ ନୃସିଂହଙ୍କ ନାମ। ନୃସିଂହ ନାମରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ନୃସିଂହ ଉଗ୍ରବୀର ନୃସିଂହ তাহলে নৃসিংহ নামরে যেটা দিয়েছেন সে নৃসিংহ নামরে যেতে দেলে অধ্যয় উগ্রবীর আবির্ভাব রূপ যেতে দেখিলে যে ব্রহ্মা সুন্দর ভাবে তাকে কଣ কলে না নৃসিংহ রূপ এতে ভয়ঙ্কর রূপ হল। ନାରଦ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ହେ ପିତାମହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କରାଳ ରୂପ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟର ରୂପ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଆମର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଅର୍ଜୁନ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ ତୁମର ସେ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରାଇ ଆସ, ମୁଁ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ନାରଦ ଏବଂ ସ୍ତୁତି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥାକୁ ଆମେ ଯିବା, ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ହେଇ ପ୍ରଭୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ବାହାରିଥିଲେ ନା ସେ ଖମ୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଖମ୍ବରୁ ବାହାରିଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଗଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଗଲା, କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ସେଇ ଦାରୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ କରିଥିବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଲେ ନମ ଏଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଏହା ବିଦ୍ରୁତ କଳେବର ଦେବ ମାନବୀୟ ପୁତ୍ର ଦେବବାର ओम नमः नृसिंह चरण अनादि परम कारण जार आदि मध्य अन्ते विचार न घटे जगते इंद्रिय अर्थ न जानती सत्य जे नित्य प्रकाशन्ति गोविंद 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 गोविंद
आनंद एक बार हरि हरि बोल जगन्नाथ दास कहते जार आदि मध्य अंते विचार न घटे जहाँ बिनु ए सृष्टि तैयार हो पारे ना जहाँ बिनु ए सृष्टि पालन हो पारे ना जहाँ बिनु सृष्टि संहार हो पारे नहीं से आद्य अच्छा मध्य अच्छा शेष अच्छा आद्य चांद मध्यम चि सर्वत्र विद्यमान इंद्रिय अर्थ न जानती सतेज नित्य प्रकाश भागवतर प्रथम स्कंद प्रथम अध्यायर तृतीय पदर लिखिले जे इंद्रिय अर्थ न जानती जो मैंने आज आम जिते कर्म करुचे ए कर्मर माध्यम हूँ इंद्रिय मन इंद्रिय माध्यम परिचालित हुए इंद्रिय से कर्मगुड़िक करे से कर्मगुड़िक करने को दुई प्रकार कर्म रखा जाए गोटे है ऊर्ध्वमुखी गोटे है निम्नमुखी गोटे है सुकर्म गोटे है कुकर्म तेणु जदि आम सत्संग बसवा सत्संग करवा ठाकुर कथा शुणा बुझा बुझेवा एवं गुरुंर आदेश मानवा ताहले आम जापर इंद्र मान केत ऊर्ध्वमुखी हे केत निम्नमुखी ऊर्ध्वमुखी इंद्र माने स्वर प्राप्त होती निम्नमुखी इंद्र माने मन हूँ इंद्रिय मानकर राजा इंद्रिय मानकर अधीन मन जो परिचालित हुए सेते बेले आम कुकर्म करने बाध्य जेपर्यंत इंद्रियों अधीन मन न थाए से सुकर्म करे जगत आमर जो नवधा भक्ति कथा आसो टे 9 जन जानती लेखा भागवत शब्द ब्रह्म प्रत्येक अक्षर अनेक अनेक सब मान अर्थ रही अर्थ रही 9 जानती अर्थ 9 जन नवधा भक्ति आमर नवधा भक्तिर 9 जन ऋषि अच्छा से 9 जन ऋषि जानती इंद्रिय मान को कि भाव आम ऊर्ध्वमुखी कर कौन कले आज्ञा आम आज्ञा टी आज्ञा घंटा चलती तेणु ये ही है नवधा भक्तिर लक्षण नवधा भक्ति 9 जन ऋषि कहते निमिरादांकर यज्ञस्थल 9 जन ऋषि उपस्थित थे 9 जन ऋषि 9 प्रकार भाव में नवधा भक्ति रही नवधा भक्ति कथा आगे कहवा तेणु आनंद मने वेद सार गोविंद ब्रह्मांड कला जे विस्तार आउजार स्वरूप हृदय चिंती आउ वेद पुरुष न जानती आउ मूर्तिका विकार जे मंत आउ जल अनल सुचंत्रित आउ रूप अरूप स्थिति तीनी जहाँ कुंद जगरे अनुमानी गोविंद 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 पदुगुची मकरंद गोविंद यही रूप भागवतर प्रथम और द्वितीय अध्याय जो 10टी प्रश्न पचारि सुत मुनि की सौनक आदि मुनि माने तार व्याख्या प्रथम अध्याय होती 6टी प्रश्न द्वितीय अध्याय 4टी प्रश्न होती तो बड़ी भाग्यर कथा कौन थी जहाँ भागवत अध्याय भी आम शेष करवा ये भागवत अध्याय माध्यम सकल परिवेश आज आनंद मुखरित हो सकल परिवेश आज मुक्त हो समस्त पाप दूर हो समस्ते आज भगवान को आशीर्वाद प्राप्त हे आशीर्वाद प्राप्त हो निजे निजर कर्म को सुरस सरस सुंदर करने आग बढ़े अनिर्माण मुनि कर्मते हरिचरित भागवते कहिबी अच्छी जेते गुणम सुजने सावधाने शुणम कपट धर्म जार नाही स्वभावे शास्त्र से बोलाई गोविंद 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 मधुगरुचि मकरंद बोलंदे कुमार हरि बोला।